Yes, students. This lecture is for student of standard ninth, and again I have decided to teach the poem to you, and this is our sixth poem because the fifth one is The Legend of the Northland. Very nice poem it was. I think you all are liked it, and today I am going to teach you No Men Are Foreign. Its name suggests that why the poet has given such a title, that No Men Are Foreign. It is written by James Kirkup. So here, have you seen the Pa movie, Pa film? In that Amitabh Bachchan had played the role of, his name I am not getting. Do you know, Preeti, what is his name? Okay. So here, that boy has painted the globe with white paint. Actually, painting competition, or we can say that drawing competition, was held in their school, and that Amitabh Bachchan has played the role of little boy, or it has some we can say that disease also. So he was abnormal person, and he was not getting how to paint. That is why he just taken the globe and painted it white, and he got the first rank. Means why? Why the chief guest has given the first rank to him? Because his white globe suggests that no division in the world, no division in any country, all the earth is equal, and that is why he got the first prize. So with this, why I am telling why I have told this story to you, because this poem is related with it only. That is why the poet has given the title No Men Are Foreign. So what the poet is saying here, before starting the poem, some explanation is given. Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? We have many ways of thinking of other people as different from us as them. They may belong to different country or speak different language. In this poem, however, the poet reminds us of many ways in which we are all the same, for we are all human. So very beautiful sentence the poet has given, that sometimes we are using the word for the men, those who are living in the foreign countries, that he is a foreigner. Okay, his appearance, his gestures are different, his language is different, his food habits are different, his clothing style is different, so that we are calling them foreign. But is that really so that they are foreign? No, because whatever the body structure, whatever the physiography we are having, the same anatomy or the same physiography the person is having. Foreigner also has 2 ears, we are having 1 nose, he is having. Okay, so our whole appearance, the color of our blood is same. Whenever we are in grief or whenever we flow in any grief, at that time we are crying. Foreigners also crying, they are not laughing. Whenever we are very happy, we used to laugh. They also used to laugh. So as our actions are same, so only because of on the appearance, and we can say that on the language and clothing style and living style, you are saying that they are foreigners. Is it so? No. So that the poet is saying that finally the bottom line is we all are human. हम लोग जो है वो कौन है? Human है. Because there is a difference between human and animals, isn't it, guys? What is the difference? Animals have 4 legs, we are having 2. Okay, we have a power to think, to take decisions. Animals don't. तो ये डिफरेंस है. ह्यूमंस के बीच में क्या डिफरेंस करोगे तुम लोग? पॉसिबल है? नो. तो यही यहाँ पे पोएट ने बोला हुआ है कि कोई भी मेन फॉरेन नहीं है. दे आर सेम लाइक अस, बिकॉज वी ऑल आर वी कैन से दैट हम लोग किसकी संतान है? अर्थ की. हमारी जो मदर है वो अर्थ है. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये पोएम मैं पहले रीड करूंगी. सबसे पहले हार्ड वर्ड्स देखते हैं. देखो, डिस्पोजेस मीन्स डिप्रीव और डिसलॉज. देन डिफाइल मीन्स मेक डर्टी और पोल्यूट. देन आउटरेज द इनोसेंस ऑफ मीन्स वायोलेट द प्यूरिटी ऑफ. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. हियर रिमेंबर, नो men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like us, the land our brothers walk upon, is earth like this in which we all shall lie. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter star. Their hands are ours, and in their lines we read,
a labor not different from our own. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love in every land is common life, that all can recognize and understand. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. It is the human earth that we defy. Our hails of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. Very beautiful poem. Now, I will explain the poem stanza by stanza or line by line. So here, in the first stanza, what the poet is saying. Remember, no men are strange, no country is foreign. सबसे पहली लाइन पोएट ने ऐसा ही बोला है कि कोई भी इंसान अलग नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, सब हमारे जैसे हैं. वी ऑल आर इक्वल. बेनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. मेटानोमी, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर मेटानोमी. मेटानोमी क्या बोलता है कि हिडन मीनिंग बताता है कि एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ कुछ रिलेशन है. तो बेनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स मीन्स अवर बॉडी. Uniforms means body. You know the school is having uniform. Why we are calling it uniform? Do you know anybody? किसी को पता है हम लोग उसको यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? Can you? अगर रियल क्लास होता तो मैं डेफिनेटली आई विल आस्क. मैं पूछती यूनिफॉर्म यानी क्या? तो यूनिफॉर्म यानी इक्वल, सेम. सबका सेम होता है कि नहीं? तुम लोग स्कूल में आते हो, हमारे स्कूल का नाम है वेदांत इंटरनेशनल स्कूल, उसका यूनिफॉर्म है, सब इक्वल. दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट इक्वल. क्योंकि हम लोग उसको पहनते हैं तो कोई ऐसा नहीं बोलता कि ये निशिल है या ये पार्थ है. हम लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, दिस इज द स्टूडेंट ऑफ वेदांत. क्यों? इसलिए वो यूनिफॉर्म होता है. तो यहाँ पे पोएट ने बोला हुआ है कि बेनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ. हमारी बॉडी, हमारा जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मीन्स कौन सी भी क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं, उसके नीचे एक ही बॉडी है जो एक ही सांस ले रही है. That you know we are inhaling oxygen and exhaling CO2, that is carbon dioxide. Foreigners का ऐसा है, वो CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं. नहीं, they are also breathing the same gas that we are breathing. जो हम लोग लेते हैं वही वो लोग भी लेते हैं, सांस लेते हैं तब. तो हमारे बॉडी के अंदर एक ही सोल है. ऐसा है फॉरेनर्स को 2 सोल होते हैं, तो हमको 3 होते हैं. नहीं. अभी इससे मुझे याद आया स्टूडेंट्स, एक बार मैं सदगुरु का प्रेयचिंग सुन रही थी. उनका प्रेयचिंग हमेशा इंग्लिश में होता है, सुनना बहुत मजा आएगा. वो ऐसे बोल रहे थे कि एक बार क्या हुआ, इंडियंस और फॉरेनर्स वर सीटेड इन द रूम एंड आई वाज गिविंग द प्रेयचिंग एंड आवर टॉपिक वाज गॉड. उन्होंने ऐसा बोला कि हमारा टॉपिक गॉड का था और इंडियंस भी बैठे थे, फॉरेनर्स भी बैठे थे, और मैं बता रहा था लोगों को गॉड के बारे में. तो एक लेडी खड़ी हुई फॉरेनर, उसने बोला कि सदगुरु tell me that God is male or female? Very simple question but very difficult answer. सदगुरु को क्वेश्चन पूछा कि सदगुरु बताइए गॉड फीमेल है या मेल? सदगुरु बोलते हैं कि इट इज जस्ट वी कैन से दैट द गॉड हैज टेकन द इनकार्नेशंस बट वी कैन नॉट डिफाइन गॉड. गॉड सिर्फ अलग अलग इनकार्नेशंस में अवतार ले सकता है, बाकी गॉड मेल है या फीमेल या हम लोग नहीं बता सकते. दूसरा क्वेश्चन वो लेडी ने पूछा, नाउ टेल मी दैट ऑल द गॉड हैज टेकन देयर इनकार्नेशंस इन द कंट्री लाइक इंडिया ओनली. In our country the God had not taken the incarnations. So one Indian suddenly stood up. एक इंडियन खड़ा हो गया वहाँ पे और उसने बोला कि अरे मैडम, हमारा इंडिया कैसा कंट्री है, वेरी ग्रेट कंट्री और इंडिया इज, इसलिए गॉड भी हमारे कंट्री में जन्म लेते हैं. और फिर वो लेडी ने बोला कि टेल मी गॉड जो है वो ब्लैक होते हैं या वाइट होते हैं, गोरे होते हैं या काले, ये भी डाउट है. तो वो इंडियन ने बोला कि हमारे इंडिया में गॉड ने जन्म लिया, मीन्स आवर इंडिया इज अ वेरी पायस कंट्री, पवित्र कंट्री हमारी, क्योंकि जहाँ भगवान जन्म लेते हैं. तो हमारे भगवान जो है, कोई बोल रहा था वाइट है, कोई बोल रहा था ब्लैक है, एक ने बोला नहीं हमारे भगवान तो ब्राउन है. इसके ऊपर उन लोगों में डिबेट शुरू हो गई. फिर सदगुरु तब तक चुप थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं. जब वो डिबेट ज़्यादा बढ़ गई तो सदगुरु ने एक ही आंसर दिया कि गॉड को इंडिया में जन्म लेना पड़ा. क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा लुच्चेगिरी
सबसे ज़्यादा झूठ बोलना, सबसे ज़्यादा पाप करना इंडिया में ज़्यादा है। तो गॉड को भी यहाँ पे आना पड़ता है कि भाई तुम लोग सुधरो। अभी तुम लोगों को हर बार मैसेज देने के लिए गॉड को आना पड़ता है, इसीलिए गॉड इंडिया में जन्म लेता है। वेरी नाइस आंसर द सदगुरु हैज गिवन एंड दैट मैन एंड दैट लेडी अंडरस्टूड द आंसर एंड दे सीटेड अप। वो बैठ गए, क्योंकि हमारे, तुम लोगों ने देखा होगा हमारी इंडियंस ये रैसिज्म के ऊपर, कास्टिज्म के ऊपर, रीजनल लैंग्वेज जो भी है उसके ऊपर बहुत ही झगड़े करते हैं, कितना सारा नुकसान होता है। बट ऐसा होता है? नो, हम भी इंडियंस हैं, वो फॉरेनर्स भी हमारे जैसे ही है। हमको 2 कान है, उनको भी 2 कान है, हमको 2 हाथ है, उनको भी 2 हाथ है। हम लोग ऐसे ही खाना खाते हैं, वो भी ऐसे ही खाना खाते हैं। हम लोग सोते समय आंखें बंद करते हैं, वो भी आंखें बंद करते हैं। सो इफ आवर कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम देन व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज फॉरेनर्स? अगर हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम है तो हम लोग उनको फॉरेनर क्यों बोलते हैं? बोलना चाहिए? नेवर। फिर आगे पोएट क्या बोल रहे हैं देखो, लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लैंड। सही है कि हमारे जैसे ही वो लोग हैं, हम जहाँ पे रहते हैं वैसे ही वो जमीन पे रहते हैं, हमारे जैसे घर है वैसे ही उनके घर है। हमारे यहाँ पे खाना बनाने के लिए हम लोग किचन में खाना बनाते हैं, उनका भी किचन होता है। बैठने के लिए ड्राइंग रूम होता है, उनका भी ड्राइंग रूम होता है। मीन्स इफ ऑल द थिंग्स आर सेम एंड द मेन थिंग इज दैट वी ऑल आर लाइंग ऑन द अर्थ। हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं, सबसे मेन आइडेंटिटी कि हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं। कोई ऐसा तो है ना कि मैं मार्स से आया, मैं सैटर्न से आया, मैं जुपिटर से आया, तो हम लोग अलग अलग हो गए, जिसको हम लोग एलियंस बोलते हैं। यू नो, डू यू हर्ड द वर्ड दैट एलियंस? हम लोग उसको एलियंस बोलते हैं। हम लोगों को एक ही जगह पे अर्थ के ऊपर हम लोग रहते हैं। वी आर ह्यूमंस नॉट एलियंस, क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारे सोचने का तरीका, हमारे खाने का, पीने का, पहनने का जो भी है वो जो है सब सेम है। तो व्हाई वी आर कॉलिंग अदर्स एज फॉरेनर्स? हम लोग उनको फॉरेनर्स क्यों बोलते हैं? दूसरी कंट्री को स्ट्रेंज क्यों बोलते हैं? नेवर, वो कभी हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर एंड फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार। पोएट यहाँ पे बोल रहा है कि उन लोगों को भी सन के बारे में पता है, उन लोगों को भी एयर के बारे में पता है, उन लोगों को भी वाटर के बारे में पता है। हियर सेम हियर वी कैन कॉल, हमको भी पता है। ऐसा थोड़ी है कि उनको ही पता है और हमें नहीं पता। द सेम एयर वी आर ब्रीदिंग इन, द सेम एयर वी आर ब्रीदिंग आउट, द सेम वाटर वी आर ड्रिंकिंग, द सेम सन वी आर यूटिलाइजिंग फॉर गेटिंग एनर्जी। सो फॉरेनर्स आर ऑल्सो डूइंग द सेम, फॉरेनर्स भी यही करते हैं। तो क्यों हम लोग उनको ऐसा बोलते हैं? अगर कुछ अच्छा शांति है, हम लोगों को क्या हार्वेस्ट करना चाहिए? पीस। पीस यानी शांति। और किसको, जो यहाँ पे विंटर स्टार का मीनिंग पोएट ने यहाँ पे बोला है कि जो वॉर होता है तो सबका नुकसान होता है, सबका। तुम लोगों ने 9th में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर तुम्हारी मैम ने पढ़ाया है, उसमें तुमने देखा कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, लोगों ने क्या करने के लिए वॉर किया था और उनका कैसे क्या हो गया। और इसीलिए यहाँ पे वो भूखे मरे, कितने लोगों की तो जनरेशन से खराब हो गई। जैसे हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो उनकी जो आने वाली जनरेशन है उनका बर्थ भी किसी को कान नहीं था, किसी को हाथ नहीं थे, किसी को नाक नहीं थी। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो प्रॉब्लम्स है, काफ़ी सारे लोग स्टारवेशन यानी भूखमरी की वजह से मर गए। तो पोएट यहाँ पे बोल रहा है कि हमको ये सब करने अलावा हमको क्या करना चाहिए? पीस जो है उसको हार्वेस्ट करना चाहिए और वॉर को छोड़ देना चाहिए, जो हमें स्टार्विंग करता है। इसलिए उसको विंटर स्टार्व के साथ कंपेयर किया है। विंटर के अंदर तुम लोग देखते हो कि विंटर सीजन में हम लोग चाहे तो भी बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ठंडी इतनी होती है, या इसलिए उसने वॉर को विंटर स्टार्व के साथ कंपेयर किया है। फिर आगे पोएट बोल रहा है, देखो, देयर हैंड्स आर अवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। उनके हाथ, जैसे उनके हाथ वैसे हमारे हाथ। अभी ये जो लाइन है, देयर हैंड्स आर अवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, दिस इज सिनेक्डोक। ये फिगर ऑफ स्पीच है। हैंड्स, इट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी बट वी आर गेटिंग द होल बॉडी। ये पार्ट है हैंड, बट हमें पूरी बॉडी का नॉलेज उससे आता है। हैंड किसको होते हैं? डॉग को होते हैं, काऊ को होते हैं? नो। तो हैंड यानी ह्यूमन, तो हैंड के ऊपर से ह्यूमन के बारे में आइडिया आता है, इसलिए सिनेक्डोक को। तो पोएट ने यहाँ पे बोल रहा है कि सबके हैंड्स इक्वल है। ओके, हम लोगों का रीड करने का या जो भी है, हम लोगों का रीड करने का तरीका यहाँ पे ऐसा नहीं लेंगे अपने, हमारी लिविंग स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल इक्वल है। तो अगर सब कुछ एक है तो हम लोग
लोग डिफरेंस क्यों कर रहे हैं, ऐसा पोएट सेकंड स्टैंजा में बोल रहे हैं। लास्ट में बोल रहा है देखो, लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। लेबर यानी पेन। लेबर का मीनिंग यहाँ पे हम लोग लेंगे पेन। जब हमको कुछ लगता है तो हम लोग रोते ही हैं कि हंसते हैं, हाँ 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 मुझे लगा देखो ऐसे करते हैं, नहीं। तो अगर हमें पेन होता है तो आवर पेन एंड देयर पेन इज सेम। दोनों के जो दुख है वो सेम होते हैं, वो लोग भी रोते हैं, हम लोग भी रोते हैं। तो अगर हमारा ये सब सेम है तो वाई वी आर कॉलिंग दैट दे आर फॉरेनर्स। तो हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो फॉरेनर्स। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट बोल रहा है देखो, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लीप। वो बोल रहे हैं, पोएट बोल रहा है कि याद रखो उनकी भी आंखें हैं जैसे हमारी है, वो उठती भी है यानी जागती भी है, सोती भी है। कि वो लोग ऐसा है, सोते हैं तो आंखें खोल के सोते हैं, जागते हैं तो आंखें बंद करके, नो। तो अगर हमारी आईज, अगर हमारे बॉडी पार्ट्स दैट गॉड हैज गिवन, अगर वो इक्वल फंक्शन कर रहे हैं, देन व्हाई वी आर मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन देम, व्हाई वी आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अस। हम लोग उसमें डिफरेंस क्यों कर रहे हैं। अगर गॉड ने जो भी हमको पार्ट्स दिए हैं उनके काम इक्वल है, आंखें जो है वो जागती है, सोती है। द स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, हमको ताकत आती है अगर हमें कोई प्यार से बोलता है। हम लोगों को किसी का प्यार मिलता है, चाहे दादा दादी हो, मम्मी पापा हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, जो भी हो, ब्रदर हो, तो ये जो लव है उससे हमें ताकत मिलती है, तो वो हमारी स्ट्रेंथ हुई। वो स्ट्रेंथ भी इक्वल है। फॉरेनर में भी ऐसा ही है, उनको भी बाय लव से ही उनको स्ट्रेंथ मिलती है। सो इन एवरी लैंड इज अ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। तो ये पूरी जो अर्थ है उसके ऊपर लाइफ इज कॉमन। ये चीज हमको पहले समझनी चाहिए कि लाइफ जो है वो कॉमन है सबके लिए, सबका लाइफ इक्वल है। फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट एंड देन अंडरस्टैंड। पहले समझो फिर उसको जानो, समझ में आ रहा है, फिर उसको इनकलकेट करो कि भाई अगर लाइफ सेम है तो हम लोग डिफरेंस क्यों कर रहे हैं। हमारे बॉडी पार्ट्स अगर इक्वल फंक्शनिंग कर रहे हैं तो व्हाई वी आर डिफरेंशिएटिंग। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे पोएट ने बोला है। फिर आगे पोएट क्या बोल रहा है देखो, लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस बिट्रे कंडेम। फिर वो आप बोल रहे हैं कि हमें ये याद रख के चलना चाहिए कि कोई एक इंसान आता है और हमें बोलता है कि तू उसको मार दे, वो तेरा एनिमी है, वो तेरा दुश्मन है, तो उसको मार दे। हम लोग उसको मार देते हैं क्योंकि हमारे कुछ सेल्फिश मोटिव जो है उसको हमें कंप्लीट करना होता है, और वो सेल्फिश मोटिव्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोग उसको मार देते हैं। पर उस वक्त हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमने जिसको मारा है उसकी वजह से हमने ये अर्थ को, डिप्राइव का मीनिंग है धोखा देना, कि हमने उसको धोखा दिया। बिट्रे का मीनिंग भी होता है उसके साथ हम लोगों ने मीन्स वही धोखा दिया उसको, और कंडेम यानी कि उसको धोखे में रख के एक ट्रैकरी करके उसको मार दिया। और हमने क्या किया, कुछ हमारे सेल्फिश मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए हमने वो पर्सन को मार दिया। बट हम लोग ये भूल गए कि वो भी हमारे जैसा ही पर्सन था। जैसे हम लोग वो जो एंट होती है, छोटे बच्चों को तुमने देखा होगा, एंट को ऐसे पकड़ के मार देते हैं, इंसान को ऐसे मार सकते हैं? नो। बहुत सोचना पड़ता है। अगर हम लोग किसी को मारते भी है दो झापट तो भी हमारे मन को इतना बुरा लगता है कि अरे मुझे उसको मारना नहीं चाहिए था। तो मार देना इज अ वेरी बिग थिंग, हमें वो लाइफ में कभी करनी चाहिए नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है, वी आर डिस्पोजिंग, बिट्रेइंग एंड कंडेम। फिर पछतावा हाथ में आता है, कुछ भी हाथ में आता नहीं है। सिर्फ हम लोग पर्सन को याद कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है कि तुमने उसको मार दिया वो वापस आ गया, नहीं, नेवर इट विल बी हैपन, ये ऐसा कभी नहीं होगा। तो जो पर्सन है वो वापस आ गया ऐसा होगा ही नहीं। तो यहाँ पे पोएट बहुत अच्छी तरह से हमको समझा रहा है कि हम लोगों को एज अ सिटीजन्स ऑफ द अर्थ, नॉट अ पर्टिकुलर कंट्री, जस्ट मार्क माई वर्ड्स, हम लोग कोई पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन्स नहीं है, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स एंड सिटीजन्स ऑफ द अर्थ। तो हम लोगों को ये जो एनिमिटी की फीलिंग है वो निकाल देनी चाहिए एंड इनकलकेट द ब्रदरहुड फीलिंग, फ्रैटर्निटी इन एसेस, सोशल साइंस में उसको स्पेशल वर्ड है फ्रैटर्निटी। वो फीलिंग हमारे माइंड में आनी चाहिए कि ये जो भी है ये मेरा फ्रेंड है, ये जो भी है ये मेरा फ्रेंड है। कभी उसके लिए एनिमी की फीलिंग हमारे अंदर आनी चाहिए नहीं। लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहा है देखो, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। हम लोग यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि दिस इज द अर्थ ऑफ आवर्स ह्यूमंस। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, तुमको साइंस में तुमने पढ़ा होगा कि इट इज हैविंग लाइफ, अर्थ के ऊपर लाइफ है।
बाकी किसी भी प्लेनेट के ऊपर लाइफ नहीं है। तो अगर अर्थ हम लोगों को इतनी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, हम लोगों को सबके सामने प्रोटेक्शन दे रही है, हम लोगों को खाने पीने के लिए हर एक अर्थ के ऊपर सब कुछ प्रेजेंट है। भगवान ने हमारे लिए सन, मून, प्लांट, एनिमल सब बनाया, हमको सब दिया, हमने क्या किया? नथिंग। ओनली वी कैन जस्ट मेक द अर्थ डिफाइल। डिफाइल का मीनिंग है पॉल्यूट, खराब करना, बिगाड़ना। हमने अर्थ को क्या दिया? अर्थ ने हमें इतनी सारी चीजें दी। गॉड ने हमारे लिए 4 स्फीयर्स बनवाए, पानी पीने के लिए हाइड्रोस्फीयर, सबको एक साथ रहने के लिए जो भी है बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर भी उसको बोलते हैं। बायोस्फीयर है ना, सब एनिमल्स उसमें आ गए। देन एटमोस्फीयर, सांस लेने के लिए भी भगवान ने बनाया हुआ है। तो अगर अर्थ हमको इतना सब दे रही है, हम अर्थ को रिटर्न में क्या दे रहे हैं? डिफाइलेशन। वी आर मेकिंग पोल्यूशन ओवर द अर्थ एंड वी आर मेकिंग द अर्थ डर्टी। हम लोग अर्थ को डर्टी कर रहे हैं। वो बेचारी गर्म हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। तुमको पता है सीजनल चेंज हो रहे हैं, उसका जो वी कैन से प्रे, उसका जो शिकार है, विक्टिम्स हम ही बने, हम ही बन रहे हैं ना। अभी देखो कोरोना इज द बेस्ट एग्जाम्पल गाइस। कोरोना ले लो, कोरोना बीमारी एकदम अचानक से कहीं से आती है, अभी वो कंटिन्यू है। एनिमल्स को क्यों कोरोना नहीं होता है? कभी तुमने ये क्वेश्चन के ऊपर सोचा? क्योंकि दे आर फ्री, दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट गॉड। वो हमेशा फ्री रहते, वो ऐसे किसी की बुराई का नहीं सोचते कभी। तो कोरोना ह्यूमंस को ही क्यों होता है? उसका सोचने जैसा आंसर है। समझ में आ रहा है? ये जो कोरोना हमें हो रहा है, ये अर्थ का शाप है हमारे ऊपर, कर्स, कि तुम लोग मुझे ऐसा करते हो, कभी तुम लोग भुगतो। तो ये सारी चीजें, यानी ये जो आउटकम्स है, ये जो रिजल्ट है, ये हमें ही फेस करना पड़ता है, हमको ही इसमें से सफरिंग करने पड़ते हैं। फिर लास्ट में राइटर बोल रहा है, देखो, ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर अवर ओन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री इज स्ट्रेंज। हर जगह एक ही हवा है, एक ही तरह की जो एयर है वो हर जगह पे फ्लो हो रही है। ब्रीज एक जैसे ही होते हैं, ब्रीज यानी जो स्लो विंड होता है वो। तो अगर सब कुछ एक है, तो व्हाई वी आर कॉलिंग दैट दिस इज फॉरेन एंड दैट कंट्री इज स्ट्रेंज? नो। सो फ्रॉम दिस वी हैव टू से द बॉटम लाइन इज नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री इज स्ट्रेंज। कोई भी मैन फॉरेन नहीं है, कोई भी कंट्री स्ट्रेंज यानी अलग नहीं है, हमारी जैसी है, हम लोग जैसे वही दूसरे लोग हैं। तो यहाँ पे हमारी ये जो पोएम है वो कंप्लीट हुई। सोक्रेटिस ने यहाँ पे एंड में लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स देखो, आई एम अ सिटीजन नॉट ऑफ एथेंस और ग्रीस बट ऑफ द वर्ल्ड। सोक्रेटिस बहुत फेमस राइटर है इंग्लिश में। उसने क्या लिखा है कि मैं एथेंस का भी रहने वाला नहीं हूँ, ग्रीस का भी रहने वाला नहीं हूँ, बट मैं ये दुनिया का रहने वाला हूँ। यानी वी आर नॉट गुजरातीज, वी आर नॉट महाराष्ट्रियंस, वी आर नॉट इंडियंस, बट वी आर द वर्ल्ड सिटीजन्स। Isn't it good, guys? So this is the moral of the story, and with this I am ending my poem. I hope you got the poem, and your work start now that you have to write thinking about the poem. क्वेश्चन आंसर दिए हैं। और बेटा देखो, मैंने 10th में बताया कि तुम लोगों को क्या करना है। जैसे मेरे पास अभी बुक थी, एक सेकंड, ये मेरी 10th के बच्चे की बुक है। उसने फिगर ऑफ स्पीच जो है ऐसे पेंसिल से यहाँ पे रखे हैं, लिखे हुए हैं। तुमको पता है कैंप में से शायद ये वीडियो तक तुम्हारे पास फिगर ऑफ स्पीच की वीडियोस मेरे नहीं आए होंगे, वो मैं पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को। नेक्स्ट पीछे जाएंगे, वो बाद में आएंगे। पर कैंप में से तुम लोग यहाँ पे काम करना, लाइन टू लाइन फिगर ऑफ स्पीच लिख के रखो, क्योंकि जब एग्जाम में तुम लोग पढ़ोगे तो सीधा टेक्स्ट बुक भी पढ़ोगे तो तुमको आइडिया आ जाएगा। ये काम सबको करना है बेटा, ये तुम्हारे लिए है, किसी टीचर के लिए या किसी के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। तुमको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिगर ऑफ स्पीच समझना है, कैंप में से लाइन टू लाइन ये बच्चे ने देखो पेंसिल से लिखे हुए हैं, तो तुम लोग भी ऐसे लिख लो, तो तुमको एग्जाम में हेल्प होगी। और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किया करो, क्योंकि डाउट सॉल्विंग लेक्चर में हमको पता चला है कि मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग एक्सक्यूजेस जो तुमको नहीं देने हैं। अभी तुम लोग बहुत प्यार से बोल रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ही टोपी पहनाओ। जिस दिन हमने टोपी पहनना स्टार्ट कर दिया तो तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे। ओके, तो आई होप तुम लोग ये बात मेरी मानोगे, इसको पॉजिटिवली लेके सब कुछ लिखोगे। यहाँ पे मैं लेक्चर एंड करती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।